So the topic for today is God's sovereignty. In Hindi, it is Parmeshwar ki Prabhuta. So before our brother Johnny Verghese will be talking on that topic, and Sabu will be doing the translation. But before getting into it, briefly हम हमारे speaker के बारे में बताएंगे. ब्रदर जॉनी गोवा से हैं और 2001 से यहाँ थाने में रह रहे हैं. कॉलेज के दिनों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और वो और अपनी पत्नी सिबी बेथिस्डा असेंबली कलीसिया का सदस्य है. और भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो IIT एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी में मदद करते हैं. वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर ब्रदर जॉनी. So you can take over. It's a joy and privilege to be here. Am I audible? Yes. Yeah, okay. Yeah, it's a great joy and privilege for me to be here with you all this evening. हम बहुत खुश महसूस करते हैं आप सभी के साथ आज जुड़कर. And it's wonderful that we have this opportunity to study something about God. और ये बहुत ही अच्छा एक मौका है जब हम परमेश्वर के बारे में कुछ सीख सकते हैं. So this evening we are going to have a short study on the sovereignty of God. तो आज हम परमेश्वर के प्रभुता के बारे में एक छोटा सा स्टडी करेंगे. This is good to know in general. ये आम तौर पर इसके बारे में जानना अच्छी बात है. And it's also good to know at a time such as this when all of us are in some difficulty. और खास कर इस समय में जब हम सभी लोग थोड़े से मुश्किल में हैं, इसके बारे में जानना और भी अच्छा है. Yeah, so I'll just be using a PPT as we go along. I guess this is visible to everyone. Yeah. So the sovereignty of God. First, let's understand the meaning of this term. हम पहले इस शब्द सॉवरेंटी या फिर प्रभुता उसका मतलब क्या है ये देखेंगे. So sovereign means someone who has the supreme or the top or the ultimate power and authority. सॉवरेन होने का मतलब ये है कि ऐसा कोई जिसके पास सबसे सर्वोच्च ताकत और अधिकार हो. There are some people who believe that God is little more powerful than us, but he is not all powerful. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर हमसे थोड़े शक्तिशाली है, लेकिन वो सर्वोच्च तरीके से शक्तिशाली नहीं. Yeah, so that is not sovereign. तो वो सॉवरेन नहीं है. There are some people who believe that God knows everything in the past, but maybe there are some things in the future that he does not know. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर शायद से हमारे अतीत में सभी चीजों को जानते हैं, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद परमेश्वर नहीं जानते. Yeah, but the Bible does not present that kind of God. लेकिन बाइबल जो है हमें इस प्रकार के परमेश्वर को नहीं हमें दर्शाता. God is in control of everything. This means that God knows everything. परमेश्वर सभी चीजों पर नियंत्रण करते हैं. इसका ये भी मतलब है कि वो सभी चीजों के बारे में जानते हैं. And he can do what he wants. Nobody can stop him from doing that. और परमेश्वर जो चाहे वो कर सकते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता. Yeah, so that's the meaning of the word sovereign. तो sovereign शब्द का अर्थ ये है. Let us read a few Bible verses which express the sovereignty of God. तो हम बाइबल में से कुछ वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर के प्रभुता को दर्शाते हैं. Since we are so far away from each other, it's a little difficult to be interactive. I'll be showing the verses on the screen. क्योंकि हम एक दूसरे से इतने जुदा हैं, एक दूसरे से बात करके ये करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा. लेकिन लेकिन उसको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे. Yeah, but if you have a Bible and if you are good at taking references quickly, it will be good for you to read it from your own Bible as well. लेकिन अगर हम सभी के पास अपने बाइबल है और हम अगर जल्दी बाइबल में से वचनों को पढ़ सकते हैं तो यह बेहतर होगा कि हम अपने बाइबलों में से पढ़ें. So Isaiah 46 verses 9 and 10 reads like this. I'm not reading the whole verses, but part of the verse reads like this. I am God, there is no one else. I am God, there is none like me. My counsel shall stand,
and I will do all my pleasure. यशाया भविष्यवक्ता के पुस्तक 46वें अध्याय के 9 और 10 वचन में लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है. Yeah, so this expresses the meaning of the word sovereign. तो ये जो वचन है, ये sovereign शब्द का मतलब हमें समझाता है. Yeah, then look at this is Daniel chapter 4 verse 32 says like this, the Most High rules in the kingdom of men and he gives it to whoever he decides. Daniel chapter 4. दानियल की पुस्तक चौथे अध्याय के 32वें वचन में कहा है, तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है. Now, which means some countries or some kings may become powerful, others may become weak, but the hand of God is behind these things. इसका ये अर्थ है कि कुछ राज्य जो है वो शक्तिशाली बनेंगे या फिर कुछ राज्य जो है वो शायद से कम शक्तिशाली रहेंगे, लेकिन इन सभी के पीछे परमेश्वर का हाथ. Yeah. Then 3 verses later, Daniel 4 verse 35 reads like this, he does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and no one can stop his hand or say unto him, what are you doing? और उसी अध्याय के 35वें वचन में लिखा है, वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है. Yeah, so from these verses we understand that everything that happens in the world is either directly done by God or it is allowed by God. तो इन वचनों को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो परमेश्वर स्वयं कर रहे हैं या फिर परमेश्वर उन चीजों को होने की अनुमति दे रहे हैं. Yeah, so there is nothing which is surprising God or there is nothing that is going out of his control. तो ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो परमेश्वर को हैरान कर देती है या फिर उनके नियंत्रण के बाहर है. Now, look at what the psalmist says in this psalm here. It is, yeah. This psalmist, I'll first read the verse. Psalm 77, verse 1 reads like this, in the day of my trouble, I sought the Lord. 77वें भजन संहिता के पहले वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा. Yeah, so here this psalmist was in some difficult situation, as all of us are today. तो ये भजन संहिता का ये भाग लिखने वाला व्यक्ति जो है वो किसी प्रकार की तकलीफ में था, जैसे कि हम सभी आज है. And then he says, I sought the Lord. और वो कहता है कि उसने परमेश्वर को खोजा. That's what we are doing today. और हम भी वही कर रहे हैं आज. Now let us understand what he says in verses 10 and 11. हम 10वें और 11वें वचन में देखेंगे. He says, this is my infirmity, this is my weakness, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. I will remember thy wonders of old. 10वें और 11वें वचन में लिखा है, मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ. मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा. निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा. Yeah. So the lesson for us is we don't have to focus too much on the crisis. तो हम इससे ये सीखते हैं कि जो मुश्किल की घड़ी है हमें उस पर ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है. We are always being bombarded by news about it.
हमें निरंतर जो न्यूज़ है उसमें से कुछ ना कुछ उसके बारे में हमें जानकारी मिलती जा रही है. But the psalmist is telling us, take some time to think about what God has done, the powerful things that God has done in the past. और भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि कुछ समय निकालो और परमेश्वर ने जो हमारे अतीत में जो शक्तिशाली काम किए हैं हमारे लिए, उन चीजों के बारे में उन्हें स्मरण करो. Yes. So I want to show you some things that God did in the past and is doing today. तो हम कुछ ऐसे चीजों को देखेंगे जो परमेश्वर ने अतीत में किए हैं और आज जो परमेश्वर कर रहा है. And these things show the sovereignty of God. और ये सारी चीजें जो है वो परमेश्वर के प्रभुता को दिखाती है. You know, if you were to go far away into the sky, away from the planet Earth, and if you were to look down, this is what you would see. और अगर हम पृथ्वी से बहुत दूर चले जाएंगे और वहां से हम पृथ्वी को देखेंगे तो कुछ स्क्रीन पे जैसे दिया गया है कुछ इस प्रकार हमें दिखेगा. Yeah, this is so far away that you know, the earth and the sun and everything around here is just this little dot here. तो ये चित्र जो है वो इतनी दूर से लिया गया है कि वो छोटा जो बिंदु दिख रहा है उसी के अंदर पृथ्वी और सूर्य और बाकी सारी चीजें. Yeah. Obviously nobody has gone so far, but scientists think that this is how it would look if we were to go that far and take a picture. कोई सच में इतनी दूर गया नहीं है, लेकिन जो शास्त्रज्ञ है वो सोचते हैं कि अगर कोई इतनी दूर जाए तो उन्हें इस प्रकार दिखाई देगा. So this is a collection of stars. तो ये जो है ये नक्षत्रों का एक समूह है. This is so big that it would take light 1 lakh years to go from one end to the other. और ये इतना दूर है कि जो प्रकाश है उसको एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए कम से कम 1 लाख साल लग जाए. These are all a collection of stars. तो ये जो हम देख रहे हैं वो सभी नक्षत्रों के समूह है. So these are these arms in which you have these groups of stars. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कर्सर आप देखेंगे वो नक्षत्रों के समूह को दिखा रहा है. And we are somewhere in some gap here. और अभी जो पॉइंटर जहाँ पर है हम वहाँ कहीं पर तो है. Yeah. So this is a close up. This is, we can see it little more close. Yeah. ये थोड़ी और करीब से हम देख रहे हैं इसे. You know, you might have noticed that in the previous slide at the center there was one black dot. हमने देखा था कि वो पिछले चित्र में एकदम बीच में एक काला सा एक डॉट है. Yeah, that's called a black hole. और उसे एक ब्लैक होल कहा जाता है. Okay, now black holes, this is a picture of another black hole. They are very dangerous because they suck everything that comes close to them. और हम ऊपर देख रहे हैं ब्लैक होल का एक चित्र भी दिया गया है. ये काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके आसपास जो भी चीजें आते हैं वो उन्हें अपने आप में समा लेते हैं. Even if the sun were to go too close to one, the entire sun and the earth and everything would be sucked into it. और अगर सूर्य भी इस ब्लैक होल के सामने जाएगा तो वो सूर्य को और पृथ्वी को अपने आप में समा लेगा. Now all these stars and their black holes and everything, they are all moving, okay? They are not stationary like it looks in a photo. और ये सभी चीजें जो हम देख रहे हैं, ये सारे नक्षत्र, सारी चीजें वो हमेशा एक जगह पे नहीं रहती, वो हिलते रहते, वो चलते रहते. Now what does this have to do with the sovereignty of God? अब इन सभी चीजों का और परमेश्वर की प्रभुता के बीच में क्या संबंध? God made these things and he is controlling these things. परमेश्वर ने इन सभी चीजों को बनाया है और इन सभी चीजों पर उनका नियंत्रण है. He knows how far the black hole has to be from this earth so that we all will not die, we all will not get sucked in. परमेश्वर जानते हैं कि इस ब्लैक होल को हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर होना चाहिए ताकि हम सभी लोग उसमें समाकर अपनी जान न गवा बैठे. Yeah, this is the image of a star. This is the picture of a star. Yeah, this is the picture of a star. ये एक नक्षत्र का चित्र है. And what is shown as light here is really X-rays. और यहाँ पर जो प्रकाश जो हमें दिख रहा है वो सच में एक्सरेज है.
Now, if you have gone to take an X-ray, you know that repeated exposure to X-rays is dangerous. अगर हम कभी एक्सरे लेने गए होंगे तो हमें पता होगा कि निरंतर अगर एक्सरेज के साथ हमारे शरीर पर एक्सरेज डाला जाएगा वो हमारे लिए हानिकारक होता है. I mean, we would be in trouble if such a star were close to us. और हम खतरे में पड़ जाते अगर ऐसा एक जो नक्षत्र है वो हमारे काफी करीब होता. Yeah, and there's an even more powerful thing than X-rays. It's called gamma rays. और एक्सरेज से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज है जिसे हम गामा रेज कहते हैं. You know, when nuclear bombs are burst and all, you'll have these gamma rays. और जब न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो फटते हैं तो गामा रेज निकलती है. There are some stars that give blasts of gamma rays. और कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो इस प्रकार के गामा रेज छोड़ते हैं. So scientists have observed those things, but they're happy to note that these stars are quite far away from our Earth and our Sun and our solar system, which is sitting cozily here. तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने इन चीजों को देखा है और वो इस चीज से खुश है कि ऐसे जो नक्षत्र है वो हमारे पृथ्वी और हम जहाँ पर है उससे काफी दूर है. This is the remains of a star that burst, a star that exploded. और ये एक ऐसे नक्षत्र का चित्र है जो फूट गया था. Yeah, you can imagine how violent the explosion of a whole star would be. और हम सोच सकते हैं कि एक नक्षत्र का फूटना कितना भयानक हुआ होगा. But we are all in a very safe location, far away from any of these things. लेकिन हमारा जो पृथ्वी है वो इन सभी चीजों से काफी दूर एक सुरक्षित जगह पर है. You know, there are dangers that you and I never knew existed, but God knew about them and God has already taken care of those things. तो ऐसे कई सारे खतरे हैं जिसके बारे में हम और आप नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर जानते थे और उन्होंने इन सभी चीजों को हमसे एक सुरक्षित अंतर पर रखा. Yeah. You know, this is also called corona. ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसे भी कोरोना कहा जाता है. That's the surroundings of the sun. और वो सूर्य के जो आजू-बाजू का क्षेत्र है. And usually there are a lot of these violent eruptions that go on the surface of a star. और एक नक्षत्र के आजू-बाजू में ऐसे बहुत सारे जो explosions है वो होते रहते हैं. Yeah, but the sun is more stable. It's less active. It's less restless than other stars which are similar. लेकिन हमारा सूर्य जो है वो बाकी सारे नक्षत्रों से कम वो एक्टिव नहीं है, वो शांत है. Yeah, and that is so good for us. And God, you can make out, God has planned that our star, our sun, is not like other stars, restless, but it is calm and stable. और ये जानकर हमें खुशी होती है कि जो परमेश्वर ने हमारे सूर्य को इस प्रकार बनाया कि वो बाकी सारे नक्षत्रों की तरह भयानक नहीं लेकिन शांत. Yeah, the sun is much bigger than the earth. The earth here is a very small dot. तो हम इस चित्र में देखते हैं कि वो बड़ा सा जो गोला है वो सूरज है, तो छोटा सा जो दाग है नीचे वो हमारी पृथ्वी है. Yes. So the sun is a gentle giant. तो जो हमारा जो सूर्य है वो एक शांत है, वो भीषण जरूर है लेकिन वो शांत. Yes. Yes. In the book of Job, there was a man Job, who had lot of calamities and crises that came upon him. ईयोब की पुस्तक में हम देखते हैं कि ईयोब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर बहुत सारी तकलीफें और आपदाएं आई थी. And after he complained so much to his friends, then God started speaking to him. और अपने मित्रों के साथ ईयोब ने बहुत सारी चीजों बोलने के बाद परमेश्वर स्वयं उससे बात करने आए. And then God came and asked him some questions. और परमेश्वर ने आके अय्यूब से कुछ प्रश्न पूछे. So here is one of those questions. और हम एक प्रश्न को देखेंगे. Job chapter 38 verse 31 reads like this: Can you tie up the chains of Pleiades or loose the bands of Orion? अय्यूब के 38वें अध्याय और 31 वचन में लिखा है, क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता व मृगशिरा के बंधन खोल सकता है. Yeah, this is a picture of Pleiades, the first one. ये जो पहला चित्र है वो प्लेयाडिस जो लिखा गया है उसका है. And this is the constellation of Orion, the second one.
और ये दूसरा जो है वो उसे कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरायन कहते हैं. Now there are no chains around them. और हम देखेंगे कि इनके आजू-बाजू कोई जंजीरें नहीं हैं. But they are pulled together by gravity. Gravity is like a chain which holds them together. लेकिन इन दोनों चीजों को जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी है, वो इन्हें एक साथ समाये रखता है. And God is asking Job, you know, can you hold these things together? Can you apply the force of gravity? और अय्यूब से परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तू इन चीजों को एक साथ बांधे रख सकता है? क्या तू गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से इनको एक साथ रख सकता है? So when Job is in a crisis, God is reminding Job that, hey, I am running the stars out here. तो जब अय्यूब के जीवन में तकलीफें आई है, तो परमेश्वर अय्यूब को याद दिलाता है कि मैं नक्षत्रों तक पर नियंत्रण मेरा पूरी तरह से है. Yeah. In Orion, there's a big star called Betelgeuse that's here, right here. ओरायन में एक बहुत बड़ा नक्षत्र है जिसका नाम बेटलजियस है. Yeah. If you take a close-up photo, this star is somewhat red in color. It's called a red giant. और इस नक्षत्र का अगर हम करीब से फोटो देखेंगे तो ये लाल रंग का है और उसे लाल जायंट रेड जायंट कहते हैं. Yeah, see, in the previous slide, you saw how big the sun was compared to the earth. तो हम पहले चित्र में हमने देखा था कि पृथ्वी के कंपेयर में सूरज कितना बड़ा है. But here, this is a picture of the sun, and this is a picture of, you know, these red giants like Betelgeuse. और हम इस चित्र में देखते हैं कि हमारे सूरज के कंपैरिजन में ये जो नक्षत्र है वो काफी बड़ा है. So in Isaiah, God tells us like this: lift up your eyes on high, behold who has created these things, who brings out their company by number. He calls them all by the names, by name, by the greatness of his might. Since he is strong in power, not one fails. यशाया भविष्यवक्ता के 40वें अध्याय के 26वें वचन में लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, इसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है. वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता. So God is telling us these things because when we face problems, God wants us to look at the stars and see, you know, these are the things that he is controlling, that shows his power and his might. परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में जब तकलीफें आती है तो हम इन सारी चीजों के बारे में सोचें और ये जाने कि इतनी बड़ी जो नक्षत्र है, इन सभी चीजों पर परमेश्वर का पूरी तरह से नियंत्रण है. Then God asked Job questions about the animals and the birds. और इसके बाद जो है परमेश्वर अय्यूब से जानवरों और पक्षियों के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं. So in 39:26 he asked, does the hawk fly by your wisdom and stretch her wings towards the south? अय्यूब के 39वें अध्याय के 26वें वचन में परमेश्वर पूछते हैं, क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है. So there are birds that have to be fed. There are birds going on migration. God is the one who sustains them. तो ऐसे कई सारे पक्षी हैं जिनको खाना मिलना जरूरी है और ऐसे भी पक्षी हैं जो एक देश से दूसरे देश तक उड़कर जाते हैं. परमेश्वर इन सारी चीजों पर नियंत्रण रखते हैं. Then in Psalms, the psalmist says, the young lions roar after their prey and they seek their food from God. 104 भजन संहिता के 21वें वचन में लिखा है, जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं. Now you know that the lions are an endangered species. हम जानते हैं कि जो सिंह है वो एक बहुत ही विलुप्त जाति है. You know, if you ask any scientist, they might say, you know, I don't know whether lions are going to survive because who knows, they might become extinct also. हम किसी साइंटिस्ट या फिर शास्त्रज्ञ से अगर पूछे तो वो बोलेंगे कि हमें पता भी नहीं कि सिंह की प्रजाति जो है वो आगे जाकर बचेगी भी क्या.
Yeah, but the interesting thing is, in the Bible we have a prophecy about the lions. लेकिन बात ऐसी है कि बाइबल में जो है एक भविष्यवाणी है जिसमें सिंह के बारे में कहा गया है. One day they are going to become vegetarian. और ये लिखा है कि एक दिन वो शाकाहारी बनेंगे. That's what is written in the prophet Isaiah. यशाया भविष्यवक्ता के पुस्तक में यही लिखा है. So far it has not happened. और अब तक ये हुआ नहीं है. So we know that at least until it happens, they are not going to become extinct. और इससे हम ये जानते हैं कि जब तक ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, सिंह की जो जाति है वो विलुप्त नहीं होगी. You know, whatever happens, hunting happens, climate change happens, whatever happens, these lions are not going to get extinct until they fulfill this prophecy which God has given. और बहुत सारी चीजें हो रही है, इनका शिकार हो रहा है, और पृथ्वी की जो क्लाइमेट चेंजेस है, ये सारी बातें हो रही है, लेकिन हम ये परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि जब तक ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, सिंह की जो जाति है वो विलुप्त नहीं होती. God can make such statements because he is sovereign. परमेश्वर इस प्रकार की बातें कह सकते हैं क्योंकि वो प्रभुता रखते हैं. This is what we are seeing here is the sovereignty of God in nature. हम जो अब देख रहे हैं वो परमेश्वर की प्रभुता जो है, जो सृष्टि में है, उससे देख रहे हैं. Yeah, God is also sovereign in history. लेकिन परमेश्वर इतिहास में भी प्रभुता रखते हैं. So in Isaiah, we read like this, Isaiah chapter 36 verse 1. It says that in the 14th year of King Hezekiah, Sennacherib, the king of Assyria, came up against all the defense cities of Judah and took them. यशाया के 36वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सेनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया. Yeah, one of those cities was called Lachish. उसमें से एक नगर का नाम लाकीश था. The name is there in the Bible. और ये नाम बाइबल में है. And people were able to identify where in Israel that ancient city was. और लोगों ने ये पता लगाया कि प्राचीन इज़राइल में ये शहर किस जगह पर था. And they also found the monuments that the Assyrians had made to celebrate their victory. और उन्होंने उन सारी चीजों को देखा जो असीरिया के लोगों ने बनाई थी अपनी जीत की खुशी मनाने. So here you can see the Assyrian soldiers have hung and they have killed the Israelite captives who were there. और इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार असीरिया के लोगों ने इज़राइल के जो बंदी लोग थे उन्हें लटकाकर उनकी जान ले ली. And some of the Israelites are being taken as captives to Assyria. और कुछ इजरायली जो लोग हैं, इस दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि उन्हें बंदी बनाकर असीरिया लेकर चले गए वो. Now this is a question that the commander of the Assyrian army asked to Hezekiah. और ये एक प्रश्न है जो असीरिया के कमांडर ने हेzekiah से प्रश्न पूछा था. Who are they among all the gods of the lands that have delivered their land out of our hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? और उसी अध्याय के 20वें वचन में ये प्रश्न लिखा है, देश के देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो. So they are saying that, no God has been able to protect his kingdom. So we are the ones in charge. तो वो इस प्रश्न के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई देवता नहीं है किसी भी राज्य में जिन्होंने अपने लोगों को हमारे हाथों से बचाया है, और हम सभी चीजों पर नियंत्रण हमारा है. So just as we destroyed other cities, we are going to destroy Jerusalem also unless you surrender. और बाकी सारे नगरों की तरह हम यरूशलेम पर भी हम कब्जा कर लेंगे अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले नहीं करोगे. And this is that emperor Sennacherib, by the way. और ये चित्र जो है उस राजा सेनेकेरिब का चित्र है. So they found this stone tablet in his palace. और कुछ लोगों ने उनके जो राजमहल में ये पत्थर का एक टैबलेट पाया. And they managed to decipher the Assyrian language. और उन्होंने इसमें जो असीरी भाषा में जो लिखी थी उसे समझने की कोशिश की. So this is part of what was written there.
और ये वहाँ पर जो लिखा था वो यहाँ पर लिखा गया है. He says like this, Hezekiah the Jew, he did not submit to my yoke. I laid siege to his cities and I conquered them. Himself I made a prisoner in Jerusalem, his royal residence. I shut him like a bird in a cage, and so on and so forth. He writes like this. तो इस पत्थर में ऐसी बातें लिखी थी कि हेजेकिया जो यहूदी है उसने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया, तो मैंने उसके जो शक्तिशाली जो नगर है और छोटे छोटे जो गांव है उन सभी को मैंने अपने कब्जे में लिया और उसको भी मैंने बंदी बनाकर जेरूसलम में रखा है. ऐसी बातें यहाँ पर लिखी. Yeah, and he signs it off like this. He signs off saying, Sennacherib, king of the universe and of Assyria. और इस जो लिखा गया है उसके आखिर में वो इस प्रकार अपना हस्ताक्षर करता है कि सेनाकरीब जो सारे ब्रह्मांड का राजा है और असीरिया का भी राजा. So you get a picture of how proud or how great this fellow thought he was. तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस राजा ये जो राजा है वो अपने आप को कितना महान समझता. Yeah, but what does God say? लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? He says, did you not know that I ordained it in ancient times that you would destroy so many cities? That is why their inhabitants were so weak and confounded before you. But I know you're going out and coming in, and your rage against me. So I will put my hook in your nose and my bridle in your lips, and I will turn you back by the way which you came. This is part of verses 26 to 29. यशाया के 37 अध्याय के 26वें और 29वें वचन में ऐसा लिखा, क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी, इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे, इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है. मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा. Yeah. So when the army was besieging Jerusalem, the angel of the Lord came and killed all the soldiers, and so Sennacherib had to return to Assyria. तो जब असीरिया के लोग यरूशलेम को कब्जा करने वाले थे, तो परमेश्वर का दूत आया और सभी असीरिया के लोगों को मार दिया और इसी कारण सेनाकरीब को लौटकर वापस जाना पड़ा. So again this shows that God is sovereign. Other people may think they are in charge, but the one who really is in charge is God. तो इससे हम समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रभुता रखते हैं. दूसरे लोग उनको समझ में ऐसा आता होगा कि वो नियंत्रण में है, लेकिन परमेश्वर सभी चीजों पर नियंत्रण रखते हैं. Yeah. Here is another prophecy that is from Ezekiel. It says, I will strengthen the arms of the king of Babylon, and I will put my sword in his hand, but I will break Pharaoh's arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man. यहेजकेल के 30वें अध्याय के 24वें वचन में लिखा है, और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरणहार घायल कराता है. So the king of Babylon, his name is Nebuchadnezzar. और बाबुल का जो राजा है उसका नाम नेबुकदनेस्सर है. And at that time the Pharaoh who was ruling Egypt, his name was Hophra. और जो उस समय मिस्र में जो राजा जो फरो था उसका नाम होफ्रा था. So God is saying that I'm going to make Egypt weak and I'm going to make Babylon strong. और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं मिस्र को जो है वो कमजोर बनाने वाला हूँ और बाबुल को ताकतवर बनाने वाला हूँ. And then he goes on to say in Ezekiel 29:15 that Egypt will be the lowest of the kingdoms. It will not exalt itself any more above the nations. I will diminish the Egyptians. They will not rule anymore over the nations. और एजेकिएल के 29वें अध्याय के 15वें वचन में परमेश्वर कहते हैं
मिस्र सभी राज्यों में से छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे अन्य जातियों पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे. Yeah. See, in this picture, this is the river Nile in Egypt. इस चित्र में हम मिस्र में जो नील नदी है उसे देखेंगे. And you see in the background the pyramids are there. और इसके पीछे हम देखते हैं कि वो जो दो पिरामिड हमें दिखाई देता है. You know, Egypt was a great civilization in the past. और मिस्र जो है वो प्राचीन काल में बहुत ही बड़ा एक राज्य था. Yeah, but after Ezekiel's time, even till today, Egypt has never become a powerful nation. लेकिन एजेकिएल भविष्यवक्ता के बाद मिस्र जो है आज तक कभी एक बहुत शक्तिशाली राज्य नहीं बन पाया. If Egypt becomes powerful like America, then the Bible will be proved wrong. और अगर अमेरिका की तरह मिस्र शक्तिशाली बन जाता है तो बाइबल गलत साबित हो जाएगा. But God is able to make such statements because He is sovereign. He has everything under His control. लेकिन परमेश्वर इस प्रकार की बातें कह पाते हैं क्योंकि वो प्रभुता रखते हैं और सभी चीजों पर उनका नियंत्रण है. This is a picture around 200-300 years old of the land of Israel. There was hardly anybody staying there except for a few farmers and shepherds. और ये चित्र जो हम देख रहे हैं ये 200 या 300 साल पुराना चित्र है इजराइल का, और वहाँ पर कुछ गिने चुने जो किसान है बस वही रहते थे. But this is what the word of God says. लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है. Yeah, I'll just paraphrase this. We won't read the whole part of it. It says that God is going to bring back the children of Israel from all the countries where He had scattered them. और इस वचन में परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बिखेर दिया है उन सभी जगहों में से परमेश्वर उन्हें वापस लाए. And the strange thing is that actually happened. और हम सब जानते हैं कि ये जो घटना है वो सच में हुई. Yeah, so this picture is from around 1940s, around World War II time, where you can see the ship full of people of Israel are returning from various countries in Europe. They are returning to Israel. और ये जो नीचे हम चित्र देख रहे हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के समय का है, 1940 के आसपास, और हम देख रहे हैं कि इस बड़े जहाज में भर भर के जो यहूदी लोग हैं उन्हें फिर से इजराइल लेके जाया जा रहा है. They came back and they established their country. ये सभी लोग वापस आए और उन्होंने अपना राष्ट्र जो है फिर से बनाया. They started the agriculture there. और उन्होंने वहाँ पर जो किसानी है वो शुरू की. They turned the deserts into green areas. और उन्होंने सभी जो बंजर जमीन थी उन्हें उपजाऊ बनाया. Probably 300 or 400 years ago, nobody would have thought that such a thing would have happened, but this is what the Bible says, and it happened exactly like that. 200 या 300 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये सारी बातें होंगी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है इसलिए ये सारी बातें हुई. These examples show that God is sovereign in history also. और ये जो उदाहरण है इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो इतिहास में भी प्रभुता रखते हैं. So just as He is sovereign in nature and in history, He is sovereign in our own lives also. तो जिस प्रकार सारी प्रकृति में और इतिहास में परमेश्वर प्रभुता रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे सभी के जीवनों में भी प्रभुता रखते हैं. Okay, here is another example from the New Testament history. The Lord Jesus Christ said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा था कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे. So during the time of the Roman Empire, there were Christians who were burnt alive because of their faith. और रोमी साम्राज्य के समय में जो मसीही लोग हैं उन्हें जिंदा जलाया दिया जाता था उनके विश्वास के कारण. And some of them were thrown to the lions. और बहुत सारे मसीहियों को जंगली जानवर या सिंह के सामने डाल दिया जाता था.
And this was all used to entertain the people of the land. और ये सभी चीजें की जाती थी ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनका मनोरंजन हो सके. Now, I don't know whether some of us are sitting here thinking, what would happen to our church because of this coronavirus? When are we next going to meet as a church? What will happen to our church? हम में से बहुत सारे लोग इस प्रकार सोच रहे होंगे कि इस कोरोना वायरस के कारण कलीसिया का क्या होगा और हम फिर से एक कलीसिया के रूप में एक साथ कब इकट्ठा हो पाएंगे. Yeah, so we must remind ourselves that the church has gone through great persecution. तो हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि कलीसिया जो है वो प्राचीन काल में भी बहुत सारी तकलीफों से गुजर चुकी है. The church has gone through war. कलीसिया जो है कलीसिया ने कई सारे युद्धों को देखा है. It has gone through many pandemics at a time when there was no medicines like we have today. और ऐसी कई महामारियों से भी कलीसिया गुजर चुकी है और ऐसे समय में गुजर चुकी है जब आज के समय के जैसे दवाइयाँ नहीं हुआ करती. Yeah, but in all this, because of God's sovereignty, the church has survived. So the church is going to survive through this also. और ये सभी चीजों के बावजूद कलीसिया जो है वो आज भी है और वो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को संभाला रखा है और आगे भी संभाले रखेगा. Now, for us, the comforting thing in God's sovereignty is this, that because He is sovereign, He is able to keep His promises. और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि परमेश्वर क्योंकि वो प्रभुता रखते हैं वो अपने जो वायदे हैं उन्हें पूरा करेंगे. So I don't know whether there's anyone who is scared of getting sick and dying. तो हम नहीं जानते कि क्या हम में से कोई ऐसे है जो डरते हैं बीमार पड़कर मरने से. No, of course, the process of death is not a comfortable one, but for those of us who are believers in Jesus Christ, death is only a stepping stone to the presence of God. मृत्यु हालांकि एक बहुत ही सुखद अनुभव नहीं होता, लेकिन हम जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं हम जानते हैं कि मृत्यु हमारे लिए परमेश्वर के साथ एक अनंत जीवन का शुरुआत ही. And some of us may be thinking that, good for the people who die and go, but then, we have to sit here and we have to face all these problems and have such a difficult life. और कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि जो लोग मर गए उनके लिए तो अच्छा है, वो तो चले गए, हम जो जिंदा है यहाँ पर रहकर ये सारी तकलीफें हमें झेलनी पड़ रही है. But for that we have promises of God. God says, I will never leave you nor forsake you. और उसके लिए हमें परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हमारे पास है. परमेश्वर कहते हैं कि मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा ना तुम्हारा त्याग करूंगा. Then the psalmist David says like this, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken nor his seed begging bread. और जो दाऊद जो है वो भजन संहिता में इस प्रकार लिखते हैं कि मैं युवा हुआ करता था और अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा है और कभी उनके संतान को रोटी के लिए भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा. Yeah, so some of us are concerned about our jobs. तो हम में से कई लोग अपना जो काम है, जो जॉब्स है, उसके लिए परेशान हैं. But this is the promise of God. लेकिन ये परमेश्वर का वचन है. He has promised to provide for our needs. उन्होंने ये वायदा दिया है कि हमारी जो जरूरतें हैं उनके लिए परमेश्वर स्वयं हमारे लिए चीजें देंगे. If you're out of a job and you have time, then please use it well. और अगर हम में से कोई हमारी नौकरी चली गई है तो उस समय को हम सही तरीके से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए. There are some of us with jobs and we are complaining about how busy our job is keeping us. और हम में से कई लोगों के पास नौकरियां हैं और हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी नौकरियां हमारा बहुत समय ले रही है. Then in Isaiah, God tells his people like this, I carry you from your mother's womb, even to your old age, I am he, and even till your hair turns white, I will carry you. I have made you, I will bear you, I will carry you, and I will deliver you. यशायाह भविष्यवक्ता के 46वें अध्याय के 3 और 4 वचन में लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो. तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ. तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा. मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए और
तुम्हें लिए फिरता रहूंगा. Yeah. So don't dishonor God by worrying. तो हमें ज़्यादा चिंता करके परमेश्वर का अनादर नहीं करना है. You know, what confidence do I have telling this to people many of whom I'm seeing for the first time? और किस साहस से ब्रदर जो है उन सभी से ये बातें कर सकते हैं जिनसे वो पहली बार मिले. Okay. But I know that the God who is sovereign in nature and the God who is sovereign in history, he has proved himself. He will take care of every individual who looks to him for help. और जो परमेश्वर सृष्टि में और इतिहास में उन्होंने अपनी प्रभुता बताई है और अपने आप को सिद्ध बताया है, उस परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं कि वो अपने सारे वायदों को पूरा करें. I will make one more point about God's sovereignty and I will close with that. हम परमेश्वर की प्रभुता के बारे में एक और पॉइंट देखेंगे और खत्म करेंगे. And that is that God's sovereignty exists along with our free will and our responsibility. और ये बात ये है कि परमेश्वर की जो प्रभुता है वो मनुष्य के चुनाव करने के अधिकार और हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर भी निर्भर है. Yeah, so God is sovereign. That should not be an excuse for us to be lazy or an excuse for us to be idle. तो परमेश्वर सभी चीजों पर प्रभुता रखते हैं. ये बात जो है इसके लिए बहाना नहीं होना चाहिए कि हम काम ना करें और आलसी रहे. Yeah. Regarding salvation, the Lord Jesus chooses people, but then he also says to the Jewish people like this, you refuse to come to me so that you would have had life. और जो बचाए जाने के बारे में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि तुम मेरे पास आने से मना करते हो और जो जीवन है तो वो तुम मुझसे नहीं लेना चाहते. So God is sovereign, but he has given lot of room for people to choose, either choose good or to choose bad. तो परमेश्वर जो है वो प्रभुता रखते हैं सभी चीजों पे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार ये छूट दी है कि वो चुनाव कर सके सही और गलत के बीच में. The Lord Jesus said, "Oh Jerusalem, I would have loved to protect you like a hen protects the chickens, but you refused." और वो प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि हे यरूशलेम, मैं तुझे बचाकर जिस प्रकार एक मादा जो मुर्गी है अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे बचाए रखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, लेकिन तू जो है वो इनकार कर रहा है. So to enjoy the benefits of God's sovereignty, we need to actively seek God. We need to seek His presence, seek His face. और तो परमेश्वर की प्रभुता है जो है उसका लाभ उठाने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर का खोज करना चाहिए. उनकी अच्छाई की खोज हमें करनी है. Yeah, speaking of the death of Christ, the Apostle Peter says like this, that it happened according to God's plan. God had already determined it. But you people who did it, you did it of your own choice with wicked hands. और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो उनकी मौत हुई उसके बारे में पत्रस इस प्रकार कहते हैं कि जो घटना हुई है वो परमेश्वर ने अपनी प्रभुता के हिसाब से उस घटना की बातें निश्चय की थी, लेकिन तुम लोगों ने अपने स्व इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था. Yeah. There was a man called William Carey living in England. और इंग्लैंड में विलियम कैरी नाम के एक व्यक्ति थे. And he wrote a booklet about the need to preach the gospel to the people from India and other parts of the world. और उन्होंने एक छोटा सा पुस्तक लिखा जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार सुसमाचार को भारत और बाकी सारे देशों में सुसमाचार का प्रचार करना कितना जरूरी है. And there were some people in his church who told him, no, there's no need to do that. If God wants to save them, God will save them because he is sovereign. और उनके कुछ करीबी लोगों ने इस प्रकार कहा कि नहीं, ये इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर तो प्रभुता रखते हैं और अगर वो चाहते हैं कि इन देशों के लोगों को बचाए तो वो जरूर बचा लेंगे. Yeah, but we know that William Carey did not listen to them. लेकिन हम ये जानते हैं कि विलियम कैरी ने उनकी बातें नहीं मानी. He came to India and he spread the gospel and he did many things for India. और वो भारत आए और उन्होंने यहाँ पर सुसमाचार बांटा और बहुत सारी चीजें उन्होंने भारत में की.
So that's the thought I want to leave you with, that God is sovereign, but in the midst of that sovereignty, He has things for us to do. तो हम इस बात को ध्यान लगाकर हम खत्म करेंगे कि परमेश्वर जो है वो प्रभुता रखते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाएं. The thing to feel happy about is not so much that you're going to survive the coronavirus. तो जो जिस बात से हमें खुशी होनी चाहिए वो ये नहीं है कि हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे. But that in the midst of the coronavirus, we can have fellowship with God, we can serve God, and God can bring something beautiful out of it. लेकिन खुशी हमें इस बात से होनी चाहिए कि इस कोरोना वायरस के बीच में रहकर भी हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और इन सभी चीजों में से परमेश्वर कोई भली बात जरूर लाए. So just like we were reminded from Habakkuk, we can rejoice no matter what the situation is. तो हबक्कुक के भविष्यवक्ता में के पुस्तक में से जैसा हमने पढ़ा था, हम खुश रह सकते हैं, हम आनंदित रह सकते हैं, भले हमारे आसपास जो भी हो. Yeah, thank you so much, and may God bless all of you. Am I audible? Yes. Yeah. Thank you so much, Brother Johnny, for wonderfully throwing light on this topic today and for reminding us where our focus ought to lie, and that God has proven Himself faithful time and again. So we need not worry. Thank you so much for that. शुक्रिया साबू के लिए भी जिन्होंने translation में हमारा मदद की है. Thank you. So before आज हम Q&A सेशंस नहीं रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि समय की कमी के कारण, लेकिन जो भी प्रश्न आपके पास है आप डायरेक्टली ब्रदर जॉनी से कांटेक्ट कर सकते हैं. हमने जो इनवाइट्स भेजे हैं वहाँ ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर भी हमने दिया है. नहीं तो on your behalf, even we can ask questions and get back to you if that's convenient for you. Before closing in prayer, Ruhama wants to share something. वो कुछ share करेगी अभी. Yeah, thank you, Kathy. Am I audible? Yeah. Yeah. So again, I would like to thank फिर से मैं brother Johnny Varghese को के लिए और साबू को ट्रांसलेशन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ. इससे पहले कि हम क्लोजिंग प्रेयर की ओर बढ़े, परमेश्वर ने एक विचार डाला जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. स्पेशली हम सब ब्रदर रवि जकारियास के बारे सुने हैं और कई लोगों ने उनके वीडियो सुने होंगे. उनका कार्य है क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स के क्षेत्र में और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है. अभी वो 73 साल के हैं, 74 ईयर्स के हैं और 17 साल की उम्र में उन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया. जब उन्होंने फिनाइल पी लिया था और वो सुसाइड करने का कोशिश कर रहे थे एंड पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक चमत्कारी रूप में उनको बचाया जब डॉक्टर ने बोला कि वो नहीं बचेंगे. पर उन्होंने और परमेश्वर ने उनको बचाया. उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया और अपना पूरा जीवन उन्होंने परमेश्वर की सेवा करते. और इसी वर्ष हमें यह पता चला मार्च के महीने में कि उनको एक प्रकार का कैंसर है और उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा था उनका. जबकि हमें कल ही पता चला या आज रात में पता चला कि जब ट्रीटमेंट चल ही रहा था तो वो कैंसर और फैल गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया. उन्होंने पूरी कोशिश की पर उन्हें पता चला कि वो अब ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकता है. तो अभी उनके पास काफी कम समय है. हो सकता है वो काफी जल्द या काफी देर में परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अनुसार परमेश्वर के पास चले जाएंगे. तो जब उन्होंने और उनके परिवार ने यह इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में शेयर किया तो मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा. उन्होंने लिखा कि परमेश्वर हमारे साथ है.
और उन्होंने जितने भी विश्वासियों ने, जितने भी लोगों ने दुनिया भर से उनके लिए प्रार्थनाएं की, उनको धन्यवाद दिया। और साथ ही साथ इस स्थिति में उन्होंने यह बोला है कि मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हूँ, उनके भलाई के लिए, उनकी दया के लिए और उनके महान प्रेम के लिए। इसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद दिया है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने इस मिनिस्ट्री में, RZIM रवि ज़कारियास इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज जो अपॉलोजेटिक्स में है, जितने लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया है उसको धन्यवाद दिया है। और जितने लोगों ने भी रवि ज़कारियास ब्रदर के कॉलिंग को, जो परमेश्वर ने उन्हें बुलाहट दी है, उसमें सहयोग दिया है, उनको धन्यवाद दिया है। और सुसमाचार प्रचार जो परमेश्वर ने किया है उनके द्वारा, और उसमें जितने लोगों ने सहयोग किया है उनको धन्यवाद दिया है। इतना ही नहीं, अंत में उन्होंने यह बताया कि परमेश्वर ने जो योजना उनके जीवन में बताई है, और परमेश्वर सबके जीवन में बताता है, सो परमेश्वर ने जो योजना उनके जीवन में बनाई, वो योजना परमेश्वर ने उनके जीवन से पूरी की है। और जैसा वचन में भी बताया जाता है कि हम सब के दिन गिने हुए हैं। सो ऑल ऑफ आवर डेज आर नंबर्ड। सो हम ना ही अपने गिने हुए दिन या अपने ठहराए हुए दिन से एक दिन ज्यादा जी सकते हैं या एक दिन कम जी सकते हैं। जितना परमेश्वर ने ठहराया है, जितना दिन, उतना ही दिन हम जी सकते हैं। तो इस बात को उन्होंने ग्रहण किया कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में खत्म हुई है, और परमेश्वर ने जितना दिन मेरे लिए ठहराया है उतना दिन मैं इस दुनिया में रहूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह बोला कि यह काफी ही भावुक समय है, यह काफी ही इमोशनल समय है उनके लिए, परंतु स्टिल फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अपना शांति से भरा है। और जैसा वचन हमें बताता है, ऐसी शांति जो हमें यह संसार नहीं दे सकता, जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, जो हमारी समझ से परे है। यानी कि द पीस विच गॉड गिव्स अस, विच इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड विच वर्ल्ड कैन नॉट गिव अस। और साथ ही उन्होंने यह बताया है कि इन सब के साथ जब वो भावुक है और परमेश्वर के शांति से भरे हुए हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि वह परमेश्वर की सच्चाई पर ध्यान लगा सके, परमेश्वर की सच्चाई पर मनन लगा सके। और जैसा जॉनी ब्रदर ने भी बताया कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अच्छा है, और परमेश्वर की प्रभुता सब बातों में है। गॉड इज राइट, गॉड इज राइचियस, गॉड इज गुड एंड गॉड इज सोवेरियन ओवर एवरीथिंग। सो आज का हमारा टॉपिक भी सोवेरेनिटी, गॉड सोवेरेनिटी है, परमेश्वर की प्रभुता है। तो इसीलिए मैं यह विचार आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और अंत में जो लाइन उन्होंने कहा वह यह है कि भले ही उनके पास सारा कारण है कि वो हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं कि वे परिवार को छोड़ देंगे, इतना बड़ा मिनिस्ट्री परमेश्वर ने दिया है वो छोड़ना पड़ेगा, पर वो ये लिखते हैं कि मुझे बहुत आनंद है कि मैं परमेश्वर से मिलूंगा। तो बेसिकली ही इज हेवन माइंडेड, मतलब कि उनका जो सोच विचार है, उनका ध्यान है, वो स्वर्गीय वस्तुओं पर है। जैसा वचन भी कहता है कि हमें पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना है। सो यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पर्सनली ये मेरे लिए बहुत ही इनकरेजिंग है, मेरे लिए काफी उत्साहित करने वाला है। सो हम यह चाहते थे कि आप लोगों के साथ भी बातें शेयर करें, ताकि आप लोग भी उत्साहित हो और स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाए। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर हमें उत्साहित करे और इन सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद।